things and useful things are lost to the world. So, friends, a reasonable amount of confidence in one's power is necessary for success. So, friends, here this is an inspiring story. One of the greatest scientists in the world, in spite of his dreaded disease that made him handicapped, he continued his extraordinary research work with great courage. Yes, I think you have got that name. Yes, today an epitome of courage. His name is Stephen Hawking. Sir Zishan sir, please show his picture. Stephen Hawking's picture. In the side. Wow, very good. Thank you, sir. So, this is Stephen Hawking. He is one of the greatest scientists in the world. In spite of his dreaded disease that made him handicapped. Now, see, you can see him, his photo. He's sitting and he's bounded on the chair. So but he continued his extraordinary research work with great courage. And now he is well-known scientist, well-known physicist. Now, can you anybody tell me such well-known personality who is handicapped? Yes, absolutely correct. Many of us can recognize her name. Her name was Helen Keller. You know everyone, and I think you have listened everyone. Helen Keller. She was blind and deaf. So, friends, she was also having the great courage and she was very brave. In spite of all this disease and problems, she got her name. So, like that, here we are going to learn about the Stephen Hawking. He is one of the greatest scientists in the world. But before it, friends, we have some chit chat question here. So let's see the first thing. A strange truth. Sir, you can show the board. Zishan sir, you can show my whiteboard. Look at here, friends. A strange handicapped are. Zishan sir, please show my board. Ah, yes. Yes, yes. Yes, sir. Okay, friends, see. A strange truth. Handicapped are those who refuse to take up challenges, even with all their senses and physiology in perfect condition. Now, friend, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब है कि ये एक अजीब और गरीब सच है कि वो लोग मेरी नजर में हैंडीकैप है जो चैलेंजेस का सामना नहीं करते हैं, मुश्किलों का सामना नहीं करते हैं, जबकि उनकी बॉडी, उनका फिजिक्स, उनका माइंड जो है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है। तो ऐसे नॉर्मल लोग अगर चैलेंजेस का सामना नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है? ऐसे लोगों को हैंडीकैप कहा जा सकता है। लेकिन जो ओरिजिनल में हैंडीकैप थे, जैसे कि हमारे स्टीफन हॉकिंग, हेलन केलर, तो इन लोगों ने अपना नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया दोस्तों। तो इसी तरीके से ऐसे लोगों के लिए I have one point. See here, how can you encourage such people to change and become confident? I repeat the same question. How can you encourage such people to change and become confident? आप ऐसे जो हैंडीकैप लोग हैं, जो मेंटली और फिजिकली फिट होने के बावजूद भी चैलेंजेस का सामना नहीं करते हैं, मुश्किलों का सामना नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और ऐसे लोग
जो कि उनको समझ में आए कि उनकी ताकत क्या है, उनकी पावर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड know their mindset. What type of they have their mindset? Even they are mental or disturbed, confused, stressed, and after that, you can take him or her in a friendly manner. Always you can shower your love. You can with a friendly manner talk with them. Also, give them examples of the successful people. अगर आप ऐसे लोगों को सक्सेसफुल लोगों की कहानियां बताएंगे, समझाएंगे, तो हो सकता है कि उनको धीरे-धीरे कुछ बातें समझ में आए, उनके अंदर कुछ चेंज आए। क्योंकि आदमी अगर पूरा फिट है, मेंटली और फिजिकली, और अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उससे बड़ा लूज़र तो कोई हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि हमारे सामने ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स है, जो मशहूर लोगों ने अपने आप को एक कामयाब मिसाल के तौर पर पेश किया। जैसे कि हमारे पास स्टीफन हॉकिंग की मिसाल है, हेलन केलर की मिसाल है। नाउ हियर आर फ्यू स्टोरीज। इन शॉर्ट आई विल टेल यू, आई थिंक एवरीवन हैज listened the name of Yuvraj Singh, the famous Indian cricketer. He hit 6 sixes in 6 balls against England, and he put forth the epitome of courage. Because, friend, he got the cancer in stomach, Yuvraj Singh, but he was very determined to go to England. He went to England with his mother. I salute Yuvraj Singh's mother, Shabnam Singh ji, that she has supported very deeply, very greatly to his son, to her son. And now, after chemotherapy, after treatment, Yuvraj Singh come back to India and played for India and made India proud. So this is also one of the great story of successful man. And his mother, salute to Yuvraj Singh's mother also. So we should salute all the mothers. Okay, friend. Now, second example I would like to tell in front of you, that here we have seen the examples of Yuvraj Singh. Okay. Now, I will tell you the story of Nawazuddin Siddiqui. I think Nawazuddin Siddiqui. Everyone know. Everyone knows Nawazuddin Siddiqui. Now he is very famous actor. But one more thing I would like to tell in front of you, my friends. In a very early days, in 90s, he was living on the floor of the Shauchalay. Shauchalay, you everyone know what kind of place is. It is the place of paying tax. We go there to pay the tax, our natural. So like that, friends, Nawazuddin Siddiqui was living on the floor of or the terrace of the Shauchalay, but he never lost his heart. He never lose his courage, and he made up his mind to achieve the success, and he just shown that courage and earn his all the status. So friends, such kinds of the stories we have in front of us. So we should understand all these things. Now, after this, friends, I would like to show you some previous used terms and new polite terms. Some previous used terms and new polite terms. New polite terms. ये किसके लिए है दोस्तों?
new previous used terms and new polite terms. This is for those handicapped people in our previous use terms we used to tell them blind. Blind means अंधा, है ना? आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं पेज नंबर 61 पर इसका एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है प्रीवियस यूज्ड टर्म एंड न्यू पोलाइट टर्म्स। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि पहले ब्लाइंड कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में, आज इस नए दौर में उसको हम कहते हैं विजुअली चैलेंज्ड। विजुअली जैसे ऑडियो विजुअल होता है ना, उसे विजुअल से विजुअली चैलेंज्ड। पहले किसी को भी ब्लाइंड कह दिया जाता, उसको बुरा लगता था, लेकिन अब उसके लिए नई टर्म आ गई है। सेकेंडली डेफ। डेफ मीन्स बहरा। डेफ मीन्स बहरा, है ना? लेकिन आज उसको हम क्या कहते हैं न्यू टर्म के अंदर? सी हियर, आई विल शो यू। ब्लाइंड, ब्लाइंड के लिए क्या हो गया है? विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली, ठीक है दोस्तों, विजुअली चैलेंज्ड। सेकेंड वर्ड क्या है? डेफ। डेफ मीन्स बहरा, लेकिन इसको आज हम क्या कहेंगे? हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग impaired. The third one is dumb. Dumb means गूंगा, जो बोल नहीं सकता, उसको हम स्पीच impaired कह सकते हैं आज की तारीख में। स्पीच impaired. And mad. Mad मतलब क्या? एड़ा, पागल, उसको हम मेंटली इल कह सकते हैं। मेंटली इल। एंड लैम। लैम मीन्स लंगड़ा, लेकिन इसको हम, किसी को लंगड़ा बोलो तो बुरा लगता है ना? तो पहले लैम कहा जाता था, लंगड़ा कहा जाता, अब उसको फिजिकली हैंडीकैप कहा जाता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर किसके लिए किस तरीके की टर्म यूज की गई है। पहले ब्लाइंड कहा जाता था, आज की तारीख में उनको विजुअली चैलेंज कहा जाता है। पहले उनको डीफ कहा जाता था, डेफ कहा जाता था, आज उनको हेयरिंग इम्पेयर्ड कहा जाता है। पहले उनको डम कहा जाता था, आज स्पीच इम्पेयर्ड कहा जाता है। पहले मैड कहा जाता था, अब मेंटली इल कहा जाता है। पहले लैम कहा जाता था, अब उनको फिजिकली हैंडीकैप कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम इस तरीके की पर्सनैलिटी से या किसी ऐसी शख्सियत से मिलेंगे तो कभी भी उनको हम इस तरीके के जो वर्ड्स है इन इससे उनको नहीं बोलना है। हमें उनसे किस तरीके से बात करना है? इन तरीके से। अगर कोई अंधा है तो विजुअली चैलेंज, अगर डीफ है, अगर बहरा है तो उसको हेयरिंग इम्पेयर्ड बोलेंगे, डम है, गूंगा है तो उसको स्पीच इम्पेयर्ड कहेंगे, मैड है तो उसको मेंटली इल कहेंगे, लैम है तो उसको फिजिकली हैंडीकैप कहेंगे। Okay, friends, I hope you are also putting down into your copy. Simultaneously, you can put it down, and most important that you have to listen all these things carefully. Okay, now see, friend, after that I will tell you one second point. That is, suppose the beginning and complete the story in your own words. Suppose one point is given, Sumit. Sumit is just like a Stephen Hawking, है ना? Sumit, the son of a shoemaker, was highly intelligent student in a municipal school. His math teacher called him Einstein. Einstein was a great scientist, my friends. But for him, why? Because he was brilliant in maths. He loved maths. Sumit wanted to study further after SSC. However, he suffered from polio. Polio, you know, though who is crippled from, who is physically handicapped.
Okay. Polio and the disease completely paralyzed his legs and made him disabled to the Sumit. In spite of being handicapped, his love for mathematics did not deter him. So he continuing his further study. Friends, now this is the story of a courageous man. He appeared for Indian Administrative Service and stood first among all the candidates. The same way Sumit received scholarship of ISRO. ISRO means Indian Space Research Organization. What a wonderful thing is courage. So Sumit did not lose his heart. He faced the challenges. He got the first prize, first award from and scholarship from the ISRO and became the great scientist also. So now, friend, now I would like to show you a video which I got from the YouTube channel. तो आप इसी तरीके से स्टीफन हॉकिंग जो हमारा जो चैप्टर है 2.4 एन एपिटोम ऑफ करेज और इसके जो राइटर है ऑथर है ही इज हिमसेल्फ इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर स्टीफन हॉकिंग. इनका मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जो कि मैंने यूट्यूब से लिया है. आप उस वीडियो को देखिए तो आपको स्टीफन हॉकिंग के बारे में बहुत कुछ जानकारी समझने के लिए मिलेगी. उसके बाद मैं वापस आपको स्टीफन हॉकिंग के बारे में कुछ और बताऊंगा और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बताऊंगा. तो जिशान सर प्लीज डिस्प्ले दैट वीडियो. Zishan sir, I request you to display the video. Very soon you will see the video. Thank you. जो तो गुफ्तगू कर रहे होंगे. आइए आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने जो तो हाजिर होने जा रहे हैं. आज हम 10वीं जमात का 2.4 लेसन जिसका नाम एन एपिटोमी ऑफ करेज है, इस लेसन का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं. तो चलिए इसके फर्स्ट पीरियड के ट्रांसलेशन को या पहले पार्ट के ट्रांसलेशन को हम देखते हैं. इस लेसन का नाम है एन एपिटोमी ऑफ करेज, जिसके मानी होते हिम्मत की मुजस्सम सूरत या हिम्मत की एक मिसाल. एपिटोमी यानी मिसाल. चलिए पहले जो है तो हम इस लेसन के मुख्तसरन बैकग्राउंड को देखते हैं और उसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं. We often learn to hide behind our weakness, disabilities, handicaps. हम अक्सर अपनी कमजोरियों, नाअहलियों और मजबूरियों को आड़ बना लिया करते हैं और mourn over them our whole life through, या फिर जिंदगी भर इनका रोना रोते रहते हैं. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वन ऑफ इस सदी के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हैं. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. इस सदी के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक साइंसदान डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग है. डिड नॉट डू सो. हॉकिंग ने हौसला गवाए बगैर या अलबत्ता ऐसा नहीं किया, यानी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. In spite of suffering from a very rare and dreadful disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. एक खौफनाक मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद डॉक्टर हॉकिंग ने
हौसला गवाए बगैर अपनी तहकीक जारी रखी। ही exemplary courage his exemplary courage continued his research undaunted। उनकी काबिल तकलीद हिम्मत को देखकर हमें इनके मुश्किल हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई देती है, या बेहतरीन कारकर्दगी उन्होंने जो की है वो हमें नजर आती है। मीन्स he continued his research, his exemplary, that is example courage should inspire us to do our best even under trying circumstances। यानी इसका मुख्तसरन हम ये कह सकते कि इंसान में चाहे कितनी भी कमजोरियां हो, कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी बीमारियां हो, कितनी भी मजबूरियां हो, उसके आड़ में ना आते हुए डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने यह साबित कर दिया कि वो एक दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंसदान है, और तमाम हालात का मुकाबला करते हुए उन्होंने अपने रिसर्च को, अपनी खोज को जारी रखा। आइए अब हम एक्चुअल लेसन के ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, अजीम साइंसदान गैलीलियो के वफात के ठीक 300 साल बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग was born in Oxford, London on 8th day of January 1942। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ऑक्सफोर्ड जो कि लंदन में है 8 जनवरी 1942 को पैदा हुए। Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century। इनके वालिदैन को ये मालूम था कि इनका नन्हा सा फर्जन एक दिन इस सदी के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक साइंसदान तस्लीम किया जाएगा। Neither could anybody imagine that, और ना ही कोई सोच सकता था कि his mind would soar up into space like a light। यानी ये कोई नहीं सोच सकता था कि इनका दिमाग खला में एक रोशनी की तरह बुलंद होगा और रोशनी की तरह मजबूर होगा। None could predict that he would be the very epitome of courage। और इस बात से ये कोई पेशन गोई नहीं कर सकता था कि वो एक दुनिया के लिए मिसाली नमूना साबित होंगे। यानी उन्होंने अपने आप पर इतना कंट्रोल कर लिया था कि वो दुनिया के जो है तो मशहूर साइंसदानों में साबित होंगे, ऐसा ना उनके वालिदैन को पता था ना उनके दोस्तों को पता था। करेज इज अ वंडरफुल थिंग। हिम्मत एक अजीब शय है, एक अजीब चीज है। इट इज दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट व्हेन फेस विद अ ग्रेट कैलेमिटी। हिम्मत एक ऐसा वस्फ है जो इंसानों को किसी बड़ी आफत पड़ने पर भी हौसला हारने नहीं देती। इट वुड नॉट बी एन एग्जैगरेशन, ये कहना कोई मुबालगा आराई नहीं होंगी कि टू से दैट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ लिविंग लीजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी। यानी ये कहना कोई मुबालगा आराई नहीं होंगी कि डॉक्टर हॉकिंग जो अपनी हयात ही में इल्म कायनात के लिए किसी दस्तानवी हीरो की तरह मारूफ और मशहूर हो गए, यानी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। इज द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप। वो एक मिसाल बनकर लोगों के सामने वो लोगों के सामने साबित हुए। हिम्मत और उम्मीद के मुजस्सम सूरत में वो लोगों के सामने आए। एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी इज बाउंड। किस्मत को कोई जालिम लहर ऐसी चली कि इनके दिमाग के सिवा
इनका पूरा जिस्म व्हील चेयर पर मुकीद होकर रह गया। मीन्स एक्सेप्ट हिज माइंड, his whole body is bound, and hope except his mind, his whole body is bound to a wheelchair। यानी सिर्फ उनका दिमाग काम करता था और पूरा जिस्म, मुकम्मल जिस्म वो व्हील चेयर पर आ चुका था। थैंक्स टू अ क्रूएल क्विक ऑफ अ फेट, इतना होने पर भी वो इस सदी के अजीम साइंसदानों में से एक रहे। Yet he is one of the greatest scientists of this country, this century। यानी वो दिमागी तौर से ही जो है तो अच्छे थे, बाकी पूरा जिस्म जो है तो उनका साथ छोड़ चुका था। इसके बावजूद भी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग दुनिया के तमाम मशहूर साइंसदानों में से एक है। An average child, Stephen grew up to be a normal teenager। आम बच्चों की तरह स्टीफन भी अपनी उम्र की दूसरी दिहाई में शरारतों से भरा हुआ था। फुल ऑफ मिस्चिफ, बहुत ज्यादा शरारती था। एंड लॉट्स ऑफ अ लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। और डॉक्टर स्टीफन को मौसीकी और रियाजी से बहुत ही मोहब्बत थी, या वो उसे बहुत पसंद करते थे। इवन दो इस फादर, हालांकि उनके वालिद वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, हालांकि उनके वालिद चाहते थे कि वो डॉक्टरी की तालीम हासिल करे। ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स, लेकिन वो रियाजी का मुताला करने पर बजिद रहे, या उन्होंने जो है तो रियाजी का मुताला करना ही पसंद किया। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम डिड नॉट हैव द कोर्स इन मैथमेटिक्स। उस वक्त या उस जमाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रियाजी का कोर्स नहीं था, सो इसीलिए did have a course in mathematics, so he opted to study physics instead। उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रियाजी का कोई स्पेशल कोर्स नहीं था, कोई मखसूस कोर्स नहीं था, इसलिए उन्होंने फिजिक्स का मुताला करना या फिजिक्स का मुताला करने का फैसला किया। सो माय डियर फ्रेंड, इट वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द फेमस। Thank you, Zishan sir. I thank you. Now, friends, as you have listened the story of Dr. Stephen Hawking, so now after this, I would like to tell you the minute and important things regarding this passage, which is very important by the point of view of exam. So see, here is the first question. What did Stephen Hawking's parents fail to know about him? What did Stephen Hawking's parents fail to know about him? दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि स्टीफन हॉकिंग जो है, इसके पेरेंट्स जो है वो फेल हो गए थे, या वो जानते ही नहीं थे अबाउट हिम कि स्टीफन हॉकिंग जिंदगी में कभी कुछ बनेगा, जिंदगी में कुछ वो कामयाब हो पाएगा। तो नाउ आई रिपीट द सेम पैसेज इन माय वे। नाउ यू प्लीज पे attention here. Now you will understand everything and every questions regarding this passage. Now see friends, as we often tend to hide behind our weakness, disabilities, handicaps, or more
mourn over them our whole life through. जैसे कि इस पैसेज में लिखा हुआ है कि हम हमारी पूरी जिंदगी जो है वो रोने धोने में निकाल देते हैं कि मैं तो अंधा हूँ, मैं तो लंगड़ा हूँ, मैं तो बहरा हूँ, या मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से सोच-सोच कर वो कुछ करता नहीं है। तो ये रोने-धोने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, डिड नॉट डू सो। इन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि ये तो बहुत ही ज़्यादा पूरे तरीके से हैंडीकैप्ड थे। लेकिन इन्होंने ज़रा-सा भी इस बारे में सोचा नहीं, और इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम वेरी रेयर एंड ड्रेडफुल डिज़, इतनी खौफनाक बीमारी के बावजूद भी डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडॉन्टेड। डॉक्टर हॉकिंग ने अपनी रिसर्च को अनडॉन्टेड जो है वो जारी रखा। अनडॉन्टेड, देखिए दोस्तों, अनडॉन्टेड ये एक ऐसा वर्ड है जो हर एक की जिंदगी को बदल देता है। अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड मतलब बहादुरी के साथ, निडर होकर, बगैर घबराए हुए, अनडॉन्टेड। और हियर फ्रेंड्स, डॉक्टर हॉकिंग से एग्जेम्पलरी करेज मीन्स जिसकी मिसाल दी जा सके, जिसके हौसले की मिसाल दी जा सके, should inspire us to do our best even under trying circumstances। कैसी भी सिचुएशन हो, कितने भी मुश्किल हालात हो, हमें अपने अंदर जो है करेज को बनाए रखना है। दोस्तों, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग हियर। सपोज everyone around the world, across the world, even in our India, we can see around our in area, in our mohalla, we are suffering from the pandemic corona. Everyone know what is corona now. So it is a very lethal disease, and lethal pandemic era is going on, and we are fighting together, friends. So this is the time to prove that we are very courageous. So this way, if we have made up our mind, we can fight with the corona, not even in our school, in our area, in our home, with our country. The government is doing his best. The government departments are doing their best to support people, to save their lives. So friend, it is our responsibility also that we should support to the government, we should support to the doctors, we should support to the nurses, we should support to the laborers, we should support to ambulance people, and everyone who are supporting to the common people or the special people in this corona pandemic period. So we are fighting against it. So this is the time to prove our courage, friends. Now, one more thing here. But unfortunately, Dr. Stephen Hawking passed away on March 14, 2018. Remember, please, all these words. Dr. Stephen Hawking passed away on March 14, 2018. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London, on the 8th day of January 1942. अब देखिए दोस्तों, 300 साल पहले के किसी साइंटिस्ट से डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग को कंपेयर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हालांकि 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल अगर किसी का डिफरेंस हो तो समझ में आता है, लेकिन 300 साल मीन्स 3 सेंचुरीज, 3 सदियां गुजर जाने के बाद अगर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग को कंपेयर किया जा रहा है गैलीलियो के साथ, it means it is a very big achievement for Dr. Stephen Hawking. दोस्तों, so Stephen Hawking has earned his name. He got his name with his hard working, with his dedication, with his sacrifice of all the thinkings and losing courage. He
thrown away every bad things, every bad evils, every bad thinking. He just put forth his thinking towards to creating, to achieving something. And he proved himself. That's why 300 years back, there was one of the greatest scientists, Galileo. He was compared with him. Not only given this name here, there is a reason for this. So, friend, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London, on the 8th day of the January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into the space like light. दोस्तों, उसके पेरेंट्स को तो पता भी नहीं था स्टीफन हॉकिंग के कि उनका बेटा एक दिन जो है वो इतनी तरक्की करेगा, इतना नाम पाएगा, जैसे कि स्पेस में, आसमान में एक रोशनी कितनी तेजी से और कितनी कामयाब तरीके से नजर आती है और पहुंचती है, तरक्की करती है। उसी तरीके से उनके बेटे ने ऐसा नाम पैदा किया। तो and none could predict that he would be the very epitome of the courage. कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो हौसले की, बहादुरी की, कामयाबी की इतनी बड़ी एपिटोम पेश कर सकते हैं, इतनी बड़ी मिसाल पेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर आपको एक ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डिड स्टीफन हॉकिंग पेरेंट्स फेल टू नो अबाउट हिम। उसके पेरेंट्स जो थे वो इस बात को सोचने में फेल हो गए थे कि डैड one day their little boy will be acclaimed as one of the greatest scientists of this century. इस सेंचुरी के, इस सदी के वो इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, ये उनके पेरेंट्स नहीं जानते थे दोस्तों। And it is why, what, how did it happen? It is because of the courage. And what is courage? मैंने आपको courage के बारे में शुरू में भी बताया। करेज इज द क्वालिटी। करेज एक किस्म की क्वालिटी होती है, हर इंसान के अंदर वो क्वालिटी होती है ना। तो करेज इज द क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट टू लूज हार्ट व्हेन फेस्ड विद ग्रेट कैलेमिटीज एंड डिफिकल्टीज। अगर कोई वो डिफिकल्टी का सामना कर रहा है, परेशानी का सामना कर रहा है, तो वो उसको सामना करना चाहिए हौसले के साथ। उसी को कहते हैं ग्रेट पीपल। दोस्तों, आफ्टर दैट, courage is wonderful thing, and it is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology. Cosmology इल्म है, इस दुनिया का जो इल्म है, इस कायनात का जो इल्म है, जमीन का, आसमान का, पूरी कायनात का जो इल्म है, इसमें वो मास्टर थे। और इसके अंदर उन्होंने अपना इस वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप, उन्होंने अपनी एक उम्मीद से, अपनी शख्सियत से इस कायनात के बारे में बहुत कुछ हमें बताया, समझाया कि दुनिया क्या है, कायनात क्या है ना। इन्होंने एक जो ब्लैक होल है उसके बारे में जानकारी हासिल की। उसके लिए तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बता पाऊंगा, लेकिन आज हम इनके कैरेक्टर को समझते हैं कि एक्सेप्ट हिज माइंड, हुज माइंड? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। हिज माइंड, his whole body was bound to wheelchair. सिवाय माइंड के उनकी पूरी बॉडी जो थी वो चेयर के ऊपर रहती थी। उनकी बॉडी जरा से भी हिल डुल नहीं सकती थी, सिवाय उनकी एक फिंगर के और उनके माइंड के। तो वो उनकी जो किस्मत थी, उनको कहते हैं कि थैंक्स टू अ क्रूएल क्विर्क ऑफ फैट, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी। तो इसी तरीके से उनकी किस्मत जो है बदल गई। अगर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग नॉर्मल होते तो शायद वो कुछ और कर रहे होते, शायद वो कुछ और बने होते। लेकिन जब वो व्हील चेयर पे बाउंड हो गए, पूरी तरीके से मुकैयद हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने अपने माइंड को यूज करना शुरू किया। और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ बैठे बैठे क्या एक जानवर की तरह जीऊं मरूं, नहीं।
उन्होंने अपने माइंड को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया, माइंड को उन्होंने यूज किया। उनका सिर्फ ब्रेन चलता था और एक उंगली चलती थी, एक फिंगर चलती थी, जिससे वो कंप्यूटर के ऊपर काम करते। और उन्होंने फिर कॉस्मोलॉजी का जो थ्योरी है, ब्लैक होल का जो थ्योरी है, उसको उन्होंने पेश किया दोस्तों। तो उनकी किस्मत जो इस तरीके जो बिगड़ गई, वो हैंडीकैप हो गए, उसको वो थैंक्स बोल रहे हैं। एंड yet he is one of the greatest scientists of this century। और अब वो इस सेंचुरी के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। एक्चुअली उनका देहांत तो हो चुका है, उनका इंतकाल हो चुका है 14 मार्च 2018 को ना। उनका लाइफ का एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट और लेकर चलता हूं, 1 मिनट का। दोस्तों, जैसे तमाम बच्चे होते हैं, एन एवरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रू अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर। Sir, 5 minutes remaining. Okay, sir. Normal teenager, but full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicines, he was bent on studying mathematics. वो उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मेडिसिन की तालीम हासिल करे, लेकिन उनको मैथ्स बहुत पसंद था और इसीलिए उन्होंने उसकी तरफ झुकाव को पेश किया। The University of Oxford at that time did not have the course in mathematics, so he opted to study physics instead। तो मैथमेटिक्स की बजाय उन्हें फिजिक्स को चुनना पड़ा। Now दोस्तों, we have understand everything regarding this part। Time is very short now। This is the problem of English language, that we need more time, but unfortunately we have very short time। But in this part, I would like to tell you one thing on the board. Please see on the board the qualities of Dr. Hawking। The qualities of Stephen हॉकिंग। दोस्तों, ये पार्ट मैं इसलिए ले रहा हूं, टाइम कम है, लेकिन ये पार्ट मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर भी होना चाहिए। ऑल दीज क्वालिटीज शुड बी इन आवर सेल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्वालिटीज ऑफ स्टीफन हॉकिंग, जैसे पहला तो उनका सबसे पॉइंट आता है, करेजियस थे वो, करेजियस, बड़े हौसलामंद थे, है ना। और दूसरी बात ये कि खुदा ने, गॉड ने, अल्लाह ने उनको बड़ा इंटेलिजेंट बनाया था, तो वो इंटेलिजेंट थे, ये भी उनकी क्वालिटी थी। तीसरी बात, वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? वो बहुत ही पूर्वोन्मुख थे, उनको हर चीज वो पॉजिटिव लेते थे, कभी वो निराश नहीं होते थे जिंदगी से। दूसरी बात, वो अनडाउंटेड थे। अनडाउंटेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बहादुर, बहुत ही ज्यादा निडर, किसी से डरते नहीं थे। और कैसी थी उनकी शख्सियत? बड़े हम्बल थे, है ना। इंसान कुछ बन जाता है, कुछ नाम हो जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है प्राउड फील करता है, लेकिन वो बड़े हम्बल थे। इसके साथ ही साथ वो ग्रेट ऑथर भी थे। ग्रेट ऑथर मतलब एक अच्छे मुसन्निफ भी थे। और ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये लेसन के जो पॉइंट्स है, ये जो पैसेजेस है, ये स्टोरी है, ये भी इन्होंने ही लिखी है। नाउ फ्रेंड, ड्यू टू द शॉर्ट टाइम, I would like to conclude my lecture here, but before finishing, I would like to ask the questions from the students. If you have any doubt, any point, so you can ask me. Friends, प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Yes, Muskan, ask your question. Then Affan. आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। मुस्कान, अफान, आप सवाल पूछ सकते हैं। खान, तुबा, आयशा। प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। यस, पूछिए बेटा।
बेटा अपना सवाल पूछिए। हिना, आयशा, आपके माइक जो है मोबाइल में अनम्यूट कीजिए और आप सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं अनम्यूट है। सर एग्जाम से पूछो। पूछो बेटा, सवाल पूछो। मेरा से तुमने ये पूछा बेटा कि एग्जाम में आएगा क्या? सर एग्जाम में बिल्कुल। आएगा। हाँ बेटा, यही सर है ना आपका, एग्जाम आएगा क्या? हाँ सर। हाँ बेटा आ सकता है, बिल्कुल। ये तो आपके एग्जाम के लिए ही बना है। और एग्जाम में यूजुअली ऐसी ही बातें पूछी जाती है जो कि जिससे आप कनेक्टेड हो लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज कम इन द एग्जाम माय सन। ओके सर। हाँ बेटा। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू, वेलकम। So dear student, our first lecture times end now. We will meet on the same link in the same class on 8:50. Thank you from my side to BMC department and all the officers. तो अजीज तुलबा तालिबात, 10 मिनट का आपको ब्रेक दिया जा रहा है। ठीक 8:55 को हम दूसरे लेक्चर के लिए यहाँ मिलते हैं। तब तक आप 10 मिनट का ब्रेक ले लें।